waves. अब ये वर्ड इटसेल्फ, ये सुपरपोजिशन का मतलब क्या है वो समझो। सुपरपोजिशन का मतलब होता है ओवरलैपिंग, मतलब एक वेव के ऊपर दूसरा वेव स्टिक कर देना। ओके, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू ओवरलैप द टू वेव्स। जैसे कि हमने एसएचएम में किया था, एक ही पार्टिकल के ऊपर दो एसएचएम परफॉर्म करके उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाला था। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। एक ही वेव के ऊपर दूसरा वेव ऐड कर देना, ओके, ओवरलैप करना। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सिंपली फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेव्स, उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सुपरपोजिशन। मींस मेनली दिस चैप्टर इज ऑल रिलेटेड टू योर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, that is overlapping of the waves. Now if I talk about waves, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ऑलरेडी तुमने इसके बारे में 11th स्टैंडर्ड में बहुत डिस्कस किया है, बट वो सारी चीजें रिकैप करेंगे हम। ओके, सॉरी, so I think system is it is an overlapping of your waves. Okay, सुपरपोजिशन का मतलब होता है ओवरलैपिंग, एक के ऊपर दूसरे को ओवरलैप करना। ओके, so since we are going to study about the overlapping of a wave, hence the chapter name is superposition of waves. अब जब मैं इस waves के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, what does this wave represent? ये wave होता क्या है? अगर मैं wave को डिफाइन करना चाहती हूँ, अगर मैं इस wave को डिफाइन करना चाहती हूँ तो किस तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ? आई कैन सिंपली से इट्स एन डिस्टर्बेंस। ये एक डिस्टर्बेंस है मीडियम में। ऑफ कोर्स ये डिस्टर्बेंस हमको बहुत काम दे रहा है आज के टाइम में। आई कैन टेक योर लेक्चर्स इज ऑल बिकॉज ऑफ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। ओके, व्हेन आई एम स्पीकिंग समथिंग आई एम डिस्टर्बिंग माय मीडियम एंड दैट डिस्टर्बेंस इज एक्चुअली योर वेव। अब आपको पता है कि वेव्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ओके, नाउ द मेन बेसिक टाइप्स ऑफ वेव्स जो आज के टाइम में हमको समझने की जरूरत है are mechanical waves, and the second one is electromagnetic waves. Now this mechanical waves requires material medium for the propagation. मतलब अगर propagation का मतलब होता है मूव होना, so mechanical waves जो होते हैं उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्टर्बेंस पहुंचाने के लिए, एनर्जी पहुंचाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता कि अगर समझो इफ आई एम स्पीकिंग फ्रॉम हियर, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ साउंड वेव. If I'm speaking from here, there are number of air molecules in the front of my mouth, and what will happen? This sound will go, this sound energy will go and strike this particular air particles. These air particles will start vibrating on its mean position, and it will transfer its energy to the another particle. And in this way, it will continue to get transferred. Means here the particles of the medium is not getting transferred. Okay, they act as a medium, and since such type of waves require material medium for their propagation, that's why these waves are called as mechanical waves. Okay, now here we are using the elastic property of the medium. Elastic property means here this is a particle, it has been replaced from its mean position, उसे एनर्जी ट्रांसफर की, again it is coming to its mean position, and in this way as you can see, please जरा ध्यान से देखो, इनका जो वाइब्रेशन है, somewhere this vibration is performing an SHM. There is an oscillation of the particle. Means somewhere we are going to connect our waves with the SHM, and we are going to prove that our particles of the medium are performing a simple harmonic motion. We are using the elastic property of the medium to transfer our energy, to transfer our disturbance from one point to another point.
It simply means that particles are not getting transferred. Only the energy is being getting transferred here from one point to another point. Okay. Are you clear with the things? Now, in the electromagnetic waves, we don't require material medium for propagation. क्योंकि आपको पता है कि वो खुद के हेल्प से propagate होते हैं. They get propagated with their own self by creating a magnetic and an electric field. So in waves को material medium की requirement नहीं होती. ये खुद से propagate होते हैं. They don't require medium for their propagation. वो खुद की electric field और magnetic field को generate कर एक दूसरे से perpendicular. You know how electromagnetic propagate. You have already studied about the propagation of electromagnetic waves in 11th standard. So यहाँ पर they don't require medium for their propagations. Hence, this type of waves are called as non-mechanical waves. So here, in this chapter, we are simply going to discuss about the mechanical waves. हम सिर्फ mechanical waves के बारे में discuss करेंगे. We are not going to discuss about the electromagnetic waves or non-mechanical waves. क्योंकि इनका phenomena ही अलग होता है. इनका काम करने का तरीका ही अलग होता है. Okay. So we are only going to discuss about the mechanical waves in this chapter. Hope you are clear. Now, मैं बताती हूँ water waves क्या है. Wait for a while. Now, let's go ahead with the next part. Now, these mechanical waves are further divided into two parts. These mechanical waves are further divided into two parts. That is, progressive waves and stationary waves, जिनके बारे में हम डीप में पढ़ने वाले हैं तुम्हारे चैप्टर में. This mechanical wave, as waves are divided into two parts, mechanical waves and non-mechanical waves. Mechanical waves के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Mechanical waves are further divided into two parts, progressive waves and stationary waves. Somewhere इनका नाम ही define कर रहा है. Progressive होना means travel करना. So these waves are traveling waves. ये travel करते हैं. And these waves are stationary waves. मतलब they don't travel. इनके बारे में डीप में पढ़ोगे कि मैम डोंट ट्रैवल मतलब आप क्या बोलना चाहते हो. इसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगी. So for now we have to focus on progressive waves, that is a traveling wave. Okay. Now this progressive wave is again divided into two parts. Transverse wave and longitudinal wave. Hope we are clear with the classification. First, it was divided into mechanical and non-mechanical waves. Mechanical waves are divided into first progressive waves and stationary wave. Progressive itself, name suggests it is a traveling wave. Progress कर रहा है, आगे जा रहा है. Stationary wave itself suggests कि it is a standing type of wave. Stationary है. इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं डिस्कस कर रही हूँ. Okay? इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं डिस्कस कर रहे हैं. सिर्फ मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ने वाले. EM वेव्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं हम. मैंने कहा ना, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दिस वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं हम. वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैकेनिकल वेव्स. नॉन मैकेनिकल नहीं कंसीडर कर रहे हैं. अभी नहीं पढ़ रहे या पूरे चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे? पूरा चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे. ये चैप्टर ऑलरेडी आपका 11th स्टैंडर्ड में हो गया है. ये वेव के बारे में आप 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस कर चुके हो. हां. डिस्कसिंग विद दिस वन. स्टेशनरी वेव का थोड़ा सा एक इंट्रो दो ना मैम से. नहीं दूंगी. इसके बारे में पूरा इंट्रो में जब मैं पढ़ाऊंगी ना, तभी इसलिए मैंने कहा कि अभी इसके बारे में सिर्फ इतना समझो. इट इज अ ट्रैवलिंग वेव, इट इज अ स्टैंडिंग वेव. ये ट्रैवलिंग टाइप ऑफ वेव है, ट्रैवल करता है. ये स्टैंडिंग वेव है. फिलहाल सिर्फ इतना ही समझो. समझ जाओ. अभी छोटे बच्चे हो, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ रहे हो. जब आगे आगे बढ़ोगे मैं सारी चीजें इन सीक्वेंस बताती जाऊंगी. अभी तुम अगर मैंने आपको ये छोड़कर ये समझा दिया तो आप इसी में गुल हो जाओगे. आपको कुछ नहीं समझेगा. सो प्लीज लेट्स गो इन अ सीक्वेंस. सो mechanical waves are further divided into progressive waves and stationary waves. Progressive waves are traveling types of waves. Stationary waves are standing types of waves. इसके बारे में we'll study further. First, we will discuss about the progressive waves. Progressive waves or traveling waves are of two types: transverse wave and a longitudinal wave. आपको पता है when you say that a wave is a transverse, कब बोलते हो आप?
कि वेव ट्रांसवर्स वेव है. You say that the waves are a transverse wave when your direction of propagation Is perpendicular to the is perpendicular to the direction of your direction of vibration is perpendicular to direction of propagation. This is direction of vibration. ये vibrate हो रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे. This is direction of vibration and this is direction of propagation. This direction में आपकी energy transfer होने वाली है. So in transverse wave the direction of vibration is perpendicular. Move कैसे हो रहा है? आगे की तरफ move हो रहा है. But vibration कैसे हो रहा है? ऊपर नीचे हो रहा है. So when the direction of vibration is perpendicular to direction of propagation, such waves are considered to be a transverse wave. When direction of vibration, for example, a sound wave, जिस डायरेक्शन में बोलते हो पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, मॉलिक्यूल्स भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं. When direction of propagation and direction of vibrations are parallel, they are same. They are considered to be a longitudinal wave. They are considered to be a longitudinal wave. Okay. So this is transverse wave and longitudinal wave. Hope you are clear with the difference between transverse wave and longitudinal wave. Let's discuss about the characteristic of the progressive wave. क्या characteristic है progressive wave को? How can you define the progressive wave? Let's try to understand that. Okay. Now, if I define the progressive wave in an ideal condition, let us take an oscillator. Wait for a while. Let us take an oscillator. Hope the things are clear. This is an oscillator जो क्या करने वाला है, एक स्ट्रिंग के ऊपर वेव क्रिएट करने वाला है. It is going to create a wave. Okay. There is an oscillator. Is the things clear? हाँ मैम चलेगा. Okay. Now, in a progressive wave, what is progressive wave? Progressive waves are such type of disturbance जिनका amplitude, velocity and frequency, ये तीनों चीज हमेशा कांस्टेंट होती है. They are always same. Amplitude, velocity, frequency, ये हमेशा कांस्टेंट होती है. आई एम टॉकिंग इन एन आइडियल कंडीशन. आप रियल लाइफ की बात लोगे तो देयर विल बी अ डैम्पिंग. ओके, देयर विल बी अ डैम्पिंग. Yes, I'm coming home. I'm coming to each and every part. Let me complete the explanation first. I know आप लोग को ज्यादा आता है. Please concentrate. Now, how can you define the progressive wave? A wave in which disturbance produced in the medium have same amplitude, always, means there is no damping, same velocity and same frequency. ये हमेशा कांस्टेंट होगा. ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियल कंडीशन. मतलब अगर किसी ने आपको प्रोग्रेसिव वेव बोल दिया तो आपको दिमाग में एक सेट कर लेना है कि इसका एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी विल बी ऑलवेज कांस्टेंट. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. देयर इज नो डैम्पिंग कंडीशन. हालांकि इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता, बट इन आइडियल केस यू आर ऑलवेज गोइंग टू स्टडी इन आइडियल केस ओनली. इन आइडियल केस फॉर एन प्रोग्रेसिव वेव you will directly simply think about the amplitude, velocity and frequency will remain constant. And progressive wave always travels in a straight line until unless there is some obstruction. ये जो progressive wave होता है unidirectional होता है. It always travel in a straight line until unless there is some obstruction in between. Okay. अगर बीच में कोई obstruction है तो भी वो कुछ amount आगे pass out कर देगा. Means progressive waves travel in a unidirectional way. So how can you define a progressive wave? A wave in which disturbance produced in a medium it will travel in a given direction continuously without any damping from one particle to another.
अगर आपको प्रोग्रेसिव वेव डिफाइन करना है तो आप सिंपली बोलोगे ये एक ऐसी वेव है जो कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में मूव होती रहती है और इसका एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होता है. एग्जांपल इज योर साउंड वेव. लेट्स डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वेव. Characteristic of progressive wave. First characteristic. Each particles in the medium execute same type of vibrations. That is, अगर आप इन particles को देखो, as I said, this is a string, and I am trying to create a progressive wave on it. मैंने एक प्रोग्रेसिव मैंने अभी तक टाइप डिफाइन ही नहीं किया कि मैं ट्रांसवर्स वेव जनरेट कर रही हूँ या लॉन्जिट्यूडनल वेव जनरेट कर रही हूँ. मैं सिंपली बोल रही हूँ मैं एक प्रोग्रेसिव वेव जनरेट कर रही हूँ. अगर मैं स्ट्रिंग के अलग अलग पार्टिकल्स को देखूं, प्लीज जरा आप इमेजिनेशन का रिक्वायरमेंट है, जरा ध्यान से देखो. अगर मैं स्ट्रिंग के अलग अलग पार्टिकल्स को देखूं, व्हाट आई विल ऑब्जर्व कि हर पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है. Every particle is performing an SHM. It is moving up and down from its mean position. अब जरा इसको समझने के लिए प्लीज लेट्स टेक वन एग्जांपल हियर. इस चीज को, इस पार्ट को समझने के लिए कि every particle in SHM, every particle in progressive wave, while generating progressive wave, performs SHM. हर पार्टिकल SHM परफॉर्म करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है. जरा इसको ध्यान से सोचो और इमेजिन करो. कैसे इमेजिन करोगे? लेट्स थिंक अबाउट वन एक्सपेरिमेंट. मैंने तुमको बोला कि at different time interval, t is equals to 1, t is equals to 2, t is equals to 3, t is equals to 4, या फिर let's take a probability का example. Let's connect your probability with your physics. Okay, मैंने तुमको ना एक कॉइन दिया है और वो कॉइन कहीं से भी डिफरेंट नहीं है, मीन्स हेड और टेल आने के चांसेस 50-50% है. मतलब एक भी साइड से वो शेडेड नहीं है कि एक ज्यादा आएगा या एक कम आएगा. द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड और टेल इज 50-50%. ओके, नाउ आई टेल यू दैट कि मुझे ये कॉइन को 50 टाइम्स टॉस करना है. आई वांट टू टॉस दिस कॉइन 25 times. 50 टाइम्स. ओके, आई वांट टू टॉस दिस कॉइन 50 टाइम्स. नाउ मुझे निकालना है कि 50 बार टॉस करके व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और अ टेल. नाउ मेरे पास इस चीज को करने के दो तरीके हैं. 100. बता सकते हो क्या दो तरीके हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी. मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए ही नहीं. मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि इस कॉइन का ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट करने का मेरे पास दो तरीका है. मैं इसी कॉइन को मैं 50 बार टॉस करूं. आई टॉस दिस कॉइन फॉर 50 टाइम्स. या फिर मैं 50 कॉइन को एक बार टॉस करूं. मुझे दोनों के आंसर सेम आएंगे, ऑलमोस्ट सेम आएंगे. इसको मैं 50 टाइम्स टॉस करूं या 50 कॉइन को एक ही साथ 50 टाइम्स टॉस करूं, दोनों का ऑब्जर्वेशन मुझे सेम मिलेगा. अब जरा समझने की कोशिश करो मैंने क्यों ये कनेक्ट किया. जब हमने SHM पढ़ा था, क्या हुआ अमन? क्यों, क्या हो गया? क्या क्वेश्चन है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. Aman, do you have any doubt? Please ask. I don't open your chat box. Please chat box में मत डालो, मेरे को आदत नहीं है chat box की. बोलो.
मिस वो दोनों क्वेश्चन सेम क्यों होगा? क्योंकि दोनों में आप वही कर रहे हो, आप एक कॉइन को 50 टाइम टॉस कर रहे हो और आप दूसरे बार में आपने एक ही टाइम में 50 कॉइन टॉस किए है, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है दोनों में वो सेम आएगी, क्योंकि आप उसका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हो। ऐसा किया जाता है। आप एक पर्सन लो, समझ गया। यू टेक वन पर्सन। एक और एग्जांपल ले लो। आप एक पर्सन लो और उसका एज डिफरेंस देखो फ्रॉम 1 to 50 कि वो उसका बिहेवियर कैसा होता है, वो कैसे बिहेव करता है, उसका नेचर। फर्स्ट एज 1 साल का है तब कैसा है, 2 साल का है तब कैसा है, 3 साल का है तब कैसा है। यू विल ऑब्जर्व द थिंग्स। या फिर अब आप 50 साल तक वेट करने से अच्छा है आप क्या करो, 1 ईयर से लेके 50 इयर्स तक के पर्सन लो। हाँ, 1 ईयर से लेके 50 इयर्स तक के पर्सन का ग्रुप बना लो और आप वहां से ऑब्जर्वेशन देखो। आपको ऑन एन एवरेज दोनों का ऑब्जर्वेशन सेम मिलेगा कि 1 साल का बच्चा कैसा बिहेव करता है, 2 साल का बच्चा कैसा बिहेव करता है, 3 साल। दोनों में ऑब्जर्व करने का तरीका अलग अलग है, बट ऑन एन अप्रोच यू आर रीचिंग टू द सेम प्रोबेबिलिटी कि 1 ये to 50 एप्लीकेशन में मैथ्स में कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जब ये आप अलग अलग करते हो ना, तो इसमें ये जो आंसर आता है ये वाला, ये मोर अप्रोप्रिएट होता है एज कंपेयर टू दिस वन। इसके बदले ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। वो आप जब आगे आगे जाओगे, फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि ऑन एन एवरेज यू आर गोइंग टू गेट द सेम अप्रोक्सीमेशन। ये क्यों कनेक्ट करवा रही हूँ, जरा आगे जाके समझेगा तुमको। प्लीज जरा अभी फिलहाल इतना समझो कि मैं एक पर्सन का 1 से 50 साल का एज देखूं अलग अलग टाइम पे, या उसी टाइम पे मैं अलग अलग पर्सन का ऑब्जर्वेशन करूं कि उनका बिहेवियर कैसा है। नाउ लेट्स गो अहेड विद द व्हाई आई हैव गिवन यू सच एग्जांपल। मैंने एक खलबली दिमाग में मचा दिया तुम्हारे। जरा अपने मैथ्स के टीचर को भी ये बात कंफर्म करना कि मिस क्या ऑन एन एवरेज हमको करेक्ट आंसर मिलेगा क्या। ओके, ट्राई टू कंफर्म इट। फिजिक्स वो अगर पर्सन ने थोड़ा सा बोल दिया हायर तो लेवल अभी पे क्या जाके है? बोलेंगे तो वो थोड़ा हायर लेवल पे जाके बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि दिस वन इज मोर अप्रोप्रिएट, विच इज करेक्ट। ओके, क्योंकि जितना ज्यादा आप ऑब्जर्वेशन रखते हो आपकी चीजें उतनी ज्यादा एक्यूरेट होती है। जब आप पेंडुलम का या कोई एक एग्जांपल करते हो, आपको टीचर बोलती है बहुत सारी रीडिंग लो, रीडिंग लेके एवरेज निकाल दो, आपका आंसर परफेक्ट आएगा। जितना ज्यादा रीडिंग लोगे उतना अच्छा होता है, तो आप जितनी ज्यादा बार करोगे उतना अच्छा होता है। नंबर ऑफ टाइम्स आप जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा होता है आपको, और परफेक्ट ये सेकंड वाला एक्चुअली मैम ऑब्जर्वेशन बड़े मिलता है। ऑब्जर्वेशंस के लिए ही है। हाँ, अब जरा इसको कनेक्ट करने की कोशिश करना कि मैं या तो 1 से 50 टाइम तक टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 50 ऑब्जर्व करूं एक ही पार्टिकल के ऊपर, या बहुत सारे पार्टिकल को अलग अलग टाइम पे परफॉर्म करने के लिए बोलूं। मुझको ऑन एन एवरेज दोनों का जो ऑन एन एवरेज बोल रही हूँ ना, इट इज नॉट परफेक्टली इक्वल, ऑन एन एवरेज मुझे मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाई आई हैव गिवन सच एग्जांपल टू यू। इतना डिस्टर्बिंग एग्जांपल मैंने क्यों दिया? जब हमने एसएचएम पढ़ा था, एक पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा था जिसका वेव हमने कुछ ऐसा बनाया था। मतलब इस पर्टिकुलर एसएचएम का जो वेव है, इस पर्टिकुलर सिंगल पार्टिकल का अलग अलग टाइम पे जो बिहेवियर है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, बट वहीं पे अब मैं क्या कर रही हूँ, जरा यहां पर ध्यान से देखो। देयर आर डिफरेंट पार्टिकल्स एंड आई एम ऑब्जर्विंग देयर बिहेवियर। मेरे को ऑन एन एवरेज दोनों का देखो। दिस इज अ सिंगल पार्टिकल which I have allowed to perform an SHM. Somewhere this particle will perform this kind of wave. ऐसा कुछ फॉलो करने वाला है। और वहीं पे मैंने बहुत सारे पार्टिकल्स लिया है और उनको अलग अलग टाइम पे ऑब्जर्व किया है। व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग कि अगर मैं इसका कलेक्टिव देखूं तो मुझे कुछ ऐसा ही अप्रोच मिल रहा है जैसा मुझे सिंगल पार्टिकल का मिल रहा था। मतलब here you can see that this particle, why this behavior has been seen here, because this particle is performing in SHM. जब मैंने collectively देखा तो here we got the same behavior. It means each and every particle is performing in SHM here. और हर पार्टिकल एक अलग अलग टाइम पे एक अलग अलग पोजीशन पे है, जिसकी वजह से मुझे ये शेप मिल रहा है। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर
फेज डिफरेंस इज रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर फेज डिफरेंस कुछ अलग हो गया तो आपको परफेक्ट वही शेप नहीं मिलेगा, वेव जैसा कुछ मिलेगा बट वेव नहीं मिलेगा। ये तभी पॉसिबल है परफेक्टली होना जब मैं अपने पार्टिकल्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट रखूंगी। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा टाइम लग रहा है किसी को कम टाइम लग रहा है, नहीं, दे आर परफेक्टली इन अ सीक्वेंस। यहाँ पे ऐसा ग्रुपिंग नहीं होना चाहिए कि एक साल के बच्चे का देखा एक 4 साल के बच्चे का देखा, टाइम डिफरेंट हो गया तो दोनों का बिहेवियर भी डिफरेंट होगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जब यही सिंगल पार्टिकल इस पॉइंट पे था, इसका बिहेवियर यहाँ पर था, ये यहाँ पर था, वहीं पर ये पार्टिकल को इस पॉइंट पे इस टाइम पर देखने से अच्छा है मैं सीधा ऐसे पार्टिकल को देखूं जो इस टाइम पर बैठा हुआ है, दोनों का बिहेवियर विल बी सेम। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट। हम एसएचएम में सिंगल पार्टिकल के बारे में, ऑसिलेशन में सिंगल पार्टिकल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनका कलेक्टिव पढ़ रहे हैं, ये देखते हुए कि मैं सिंगल पार्टिकल के बारे में पढ़ूं या कलेक्टिवली पढ़ूं। अगर सारे पार्टिकल्स एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं तो मुझे कलेक्टिव रिजल्ट भी वही मिलेगा जो मेरा सिंगल पार्टिकल डिफरेंट टाइम पे दे रहा था। इसी पार्टिकल को इस पोजीशन पे देखो, इट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। मैं इसी पार्टिकल को इस एक्सट्रीम पोजीशन पे देखूं या फिर एक ऐसा पार्टिकल जो एक्सट्रीम पे बैठा हुआ है उसको देखूं, दोनों का बिहेवियर विल बी सेम। So here we are going to discuss about number of particles which are performing SHM. So progressive waves are those waves जिसके अंदर सारे particles SHM perform करते होते हैं और उनका जो wave बनता है कुछ इस तरीके से बनता है because they are performing in SHM. Oscillation में हमने single particle को देखा था और ऐसे waves में हम बहुत सारे particles को collectively देखेंगे। Are you understanding what I'm trying to say? Can you imagine the things? हाँ बोलो। मैम सारे पार्टिकल्स का एनर्जी सेम होगा ना? हाँ, अगर आप आइडियल केस में देख रहे हो तो। ओके मैम। रियल केस में सेम नहीं होगा, रियल केस में इट विल डिसिपेट ऑफ कोर्स। यस यस। सो आई एम ओनली डिस्कसिंग अबाउट आइडियल केस। मैं अभी आपको रियल केस भी दिखाऊंगी विद एन वीडियो। हेलो मैम। बोलो मैम, अगर यहाँ पे एक पार्टिकल इनिशियल से फाइनल पे जाता है, मतलब एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो मैम पार्टिकल कभी नहीं जाता आयुष, पार्टिकल कभी नहीं जाता। आप कौन सी बात कर रहे हो, कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हो, इसमें बात कर रहे हो कि एसएचएम में बात कर रहे हो? मैम आपने बोला ना दोनों रिलेटेड है। हाँ, दोनों रिलेटेड नहीं है, दोनों एक जैसा बिहेव कर रहे हैं। हाँ वही बोल रहा हूँ मैम, अगर कोई पार्टिकल अगर हाँ, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाता है हाँ, तो वहां पे उसको कुछ एनर्जी कंज्यूम होती है मैम। और अगर कोई एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो अगर हम लोग एक्सट्रीम से नहीं मैम, आइडियल कंडीशन बोल रहा हूँ अगर। हाँ, हम जब इसका, हाँ आयुष, जब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे ना, हम वो सारी चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे कि मैम अगर मेरा पहला वाला पार्टिकल पहले एक फेज से स्टार्ट हुआ तो मैं क्या करूंगा। वो सारी चीजें हम इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे कि ऐसा है। यहाँ पे तो चलो मैंने कंसीडर कर लिया कि मेरा पहला पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। अगर मेरा पहले पार्टिकल के पास ही कुछ फेज है तो वो चीज भी मैं अपने इक्वेशन में रिप्रेजेंट करूंगी। इट इज गोइंग टू बी डिफाइंड कि इट वाज ऑलरेडी हैविंग अ फेज। समझ में आ रहा है आयुष? yes, अगर समझो ये पार्टिकल है, इसका कुछ फेज है इस टाइम पे, तो मैं ऑफ कोर्स मैं कंपेयर करते वक्त वो चीज ध्यान में रखूंगी। मैं कंपेयर करते वक्त वो चीज ध्यान में रखूंगी कि अगर इसका फेज है और मुझे, मैंने पहले ही बोला कि आप जब कंपेयर कर रहे हो आपको एज डिफरेंस बहुत ध्यान से रखना है। एक 1.5 का एज का है, मैंने 1.5 के एज के बच्चे को देखा तो मैं यहाँ पर भी 1.5 के एज के बच्चों को ही देखूंगी। ऐसा नहीं है कि 1 के एज के बच्चे को मैं 1.5 से कंपेयर करूं, 1 के एज के बच्चे को मैं 1 के एज के बच्चे से डिफरेंस कंपेयर करूंगी कि इफ माय पार्टिकल इज हियर एट मीन पोजीशन, इसका बिहेवियर कैसा है। वहीं पे अगर मेरा ये जो सिंगल पार्टिकल था, वहीं पे मेरा जो ये सिंगल पार्टिकल था, अगर यही पार्टिकल मीन पे होता तो वो कैसा बिहेव करता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बहुत सारे बच्चों को देखूं या फिर एक ही बच्चे का बिहेवियर अलग अलग पॉइंट पे देखूं, मैं क्यों ऑब्जर्व कर रही हूँ सेम कि दोनों का बिहेवियर इज सेम एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स। पूछो, प्लीज थिंक, इमेजिन एंड आस्क क्वेश्चन। ये जब तक नहीं समझोगे, वेव्स नहीं समझोगे। क्या पूछ रहे हैं मैम? कुछ डाउट है तो पूछो। क्या पूछ रहा है मतलब मुझे कैसे पता होगा?
ये चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? एक सिंगल पार्टिकल को अलग अलग टाइम पे ऑब्जर्व करो या उस टाइम पे जाके किसी एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करो जिसका फेज, मैंने पहले ही बोला, जिसका फेज डिफरेंस हमेशा सेम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेरिंग डिफरेंस आए, जो एक कांस्टेंट फेज के साथ लैग हो रहा हो, कि मैं हर बार डिफाइन कर सकूं कि अगर मेरे अंदर फेज डिफरेंस आ रहा है तो मैं पहले ही बोल दूंगी कि हाँ भाई ये मेरे अंदर ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसके पास उतना एक्स्ट्रा था, अदरवाइज दोनों का वैल्यू सेम आता। मैम मैंने मतलब पहले ही ये बोला जो कि जो फेज डिफरेंस हम डिसाइड करेंगे वो कांस्टेंट रखेंगे, वेरिंग नहीं रखेंगे। बोलो। हेलो, हाँ हाँ मैम, पूछो। ये जो आपने बोला स्टेट ऑफ ऑसिलेशन जो है अपना फेस, अपना जो चेंज होता रहता है पार्टिकल टू पार्टिकल, मतलब वो हाँ चेंज ऑफ फेस एक कांस्टेंट इससे ही होएगा ना चेंज? हाँ, एक कांस्टेंट अमाउंट से होगा। तभी ऐसे वो सेम सारी होएगा ना? चीजें हमको कांस्टेंट रखनी पड़ेगी चीजों को कंपेयर करने के लिए। अगर वेरिंग वेरिंग हो जाएगा तब तो पर्टिकुलरली प्रॉपर वेव बनेगा ही नहीं, ये वेव अलग बनेगा वो वेव अलग बनेगा, तो हमको काफी चेंज हो रहा है मेंटेन लेकिन करके एक एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट करना है, होगा। कांस्टेंट हाँ अमाउंट से चेंज हो रहा है, समझा? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सी ओवरऑल कुछ भी देखो, प्लेस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 50 पॉइंट अपने घर पे टॉस करो या लैब में टॉस करो, इज वन ऑफ द सेम थिंग। प्लेस से तो कोई सिचुएशन कोई क्रिएट नहीं होने वाली। सिर्फ हमको ये चीज ध्यान देना है कि आपका पार्टिकल का इनिशियल बिहेवियर क्या था, मतलब अगर उसके पास स्टार्टिंग से कुछ है एक्स्ट्रा, एक वो चीज ध्यान देनी है। और दूसरा, दोनों का टाइम सेम रखकर बात करना है कि इफ आई एम ऑब्जर्विंग माई सिंगल पार्टिकल एट टी इज इक्वल्स टू 0 and I am observing the particle which is at t is equals to 0. Are you understanding what I am trying to say? अब जरा एक वीडियो देखो और ध्यान से समझो, in which ये वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है in your oscillation। वहां पे शायद इतना कनेक्ट नहीं हुआ होगा जितना अभी मैं कनेक्ट करने जा रही हूँ। You are going to observe a collection of pendulum at different times, or you will observe that whole combination is performing in SHM। अगर वो टिकटॉक वाला वीडियो आपको याद हो तो जरा ध्यान से देखो। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। Wait for a while. Observe there are number of particles which are arranged in a sequence। तो एक ही पार्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। These are different particles at performing at different points। ऐसा वेव में होता है मैम? प्लीज फर्स्ट ऑब्जर्व इट, बाद में एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या बताना था मुझे इस वीडियो में। फिलहाल सिर्फ ऑब्जर्व करो और इमेजिन करो और कुछ मत करो, फिलहाल क्वेश्चन भी मत पूछो। अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से देखो, फिर समझाती हूँ कि क्या समझाना चाहती थी। कुछ ऑब्जर्व किया, चीजों को कुछ समझने की कोशिश की।
कि अगर मैं एक सिंगल पार्टिकल को SHM परफॉर्म करवाऊं और उसका बिहेवियर देखूं, या फिर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उनको अलग अलग टाइम पे ऑब्जर्व करूं, हालांकि टाइम लैग बहुत छोटा है, तो व्हाट आई विल ऑब्जर्व दैट बोथ आर फॉर्मिंग अ वेव. Can you imagine the two things? Here we are going to discuss in waves, you are going to discuss with collective number of particles at different time. हैंग हो गए हो? कुछ समझ में आ रहा है? Are you there, guys? समझ रहा है. हाँ, समझ yes रहा मैम. है? Yeah. Yes. Okay. Means this progressive wave is a collectiveness of particles which are performing SHM with each other. अब जरा इसको साउंड वेव के टर्म्स में समझो कैसे परफॉर्मेंस हो रहा है. मैंने यहाँ से कुछ बोला, there are number of air molecules in front of my mouth. This particle started vibrating. It started performing in SHM. जब ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे आया, इसने अपनी एनर्जी आगे वाले को ट्रांसफर की, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉप हो जाएगा. एक्सट्रीम पोजीशन ये स्टॉप होता है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन, आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे your kinetic energy has been converted to potential energy, but again it will return since it is performing in oscillation. It will transfer the wave. ये वेव को आगे ट्रांसफर कर देगा जो कि एनर्जी कैरी करने वाला है. It will transfer some wave. ये वाला पार्ट ऑसिलेट होने लगेगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये रेस्ट पे आ जाएगा. It will go back to the mean position. It will go back to the mean position because it consists of some amount of its restoring force. It will go back to its mean position. Mean position क्रॉस करेगा, ये पॉइंट पे आएगा and it will oscillate. धीरे धीरे इसका ऑसिलेशन कम होता जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी आगे वाले को ट्रांसफर कर रहा है. जब आप बोलते हो, बोलने के बाद पहले आपका फर्स्ट पार्टिकल जो सामने वाला है वो वाइब्रेट करता है, फिर आगे वाला वाइब्रेट करता है, फिर उससे आगे वाला वाइब्रेट करता है. तो जैसे ही जब दूसरा वाला वाइब्रेट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि पहला वाला स्टॉप हो चुका है. इट इज स्टिल वाइब्रेटिंग, बट उसका वाइब्रेशन थोड़ा कम हो जाता है. इसीलिए आपका जो वेव्स है, अगर आप साउंड वेव की बात करो तो देयर इज एन अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन. कंप्रेशन ने जैसे ही अपनी एनर्जी आगे रेयरफ्रैक्शन को पास की, कम प्रेशर वाले एरिया को पास की, पीछे वाला एरिया के पास एनर्जी कम हो जाती है. वो एडियाबैटिक वाला कॉन्सेप्ट ना मैम. एग्जैक्टली. और ये प्रोसेस काफी फास्ट होता है. मैम Means all the particles are performing in acid. पूछो. आपने बोला ये पार्टिकल मेन पोजीशन पे आता है, फिर रुक जाता है, उसके बाद फिर पीछे वाला पार्टिकल आता है. पे नहीं रुकता. आपने बोला मेन पोजीशन पे नहीं रुकता. मैंने ये स्टेटमेंट दिया ही नहीं. मैंने कहा एक्सट्रीम पोजीशन पे इट स्टॉप्स. मेन पोजीशन पे आने के बाद इट हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. सॉरी, हाँ, मेन पोजीशन पे आपके क्या होता है फिर मैम? वो जो लाइन है ना, बताओ ना. क्या बोल रहा हो? आपने वो जो लाइन पे अभी एक्सप्लेन किया ना, एक्सट्रीम पोजीशन, मेन पोजीशन, वो एक बार बताओ ना जरा. ये ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ इन एसएचएम. मैम एक सेकंड रुको. वो उज्जवल का माइक चालू, बहुत खरखर हो रहा है. Okay, yeah. When you are at extreme position, your particle stops at extreme position. You know, SHM stops at extreme position because all your kinetic energy is being converted to potential energy at this point. When it returns back, it comes to its mean position where its kinetic energy is maximum, because of which it moves to the opposite side. When it moves to the opposite side, again at this extreme position, its velocity is 0. So ये पूरा एक सिंगल पार्टिकल को अगर आप ऑब्जर्व करो, इट इज परफॉर्मिंग इन एसएचएम. ऑफ कोर्स ये धीरे धीरे स्टॉप होगा. क्यों धीरे धीरे स्टॉप होगा? क्योंकि इट विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स टू द अदर पार्टिकल्स एज वेल. बट ये अल्टीमेटली तुरंत स्टॉप नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि इसने अपनी एनर्जी पूरी इसको ट्रांसफर कर दी और ये रेस्ट पे आ गया. इट विल स्टिल वाइब्रेट एंड इट विल परफॉर्म इन एसएचएम. मतलब एक्सट्रीम पोजीशन वो पॉइंट है कि मैंने समझो किसी को कुछ बोला तो लास्ट तो फिर हाई बोला तो
हाई बोल के खत्म हो जाएगा ना फिर वो उतना साउंड। एक मिनट, जब तुमने हाई बोला, हाई में जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी गई वो पहले फर्स्ट पार्टिकल के पास जाएगी। हाँ फर्स्ट पार्टिकल विल वाइब्रेट। करेक्ट। वो पार्टिकल का जो एक्सट्रीम पोजीशन होगा दैट इज द एक्सट्रीम पोजीशन, जिसके आगे वो दूसरे वाले पार्टिकल को पास करेगा। दूसरा वाला पार्टिकल विल स्टार्ट वाइब्रेट। ये एक्सट्रीम पोजीशन फर्स्ट पार्टिकल का है कि उतना तक उसने फर्स्ट एनर्जी पार्टिकल होल्ड का है। किया और पास किया। हाँ, ओके ये फर्स्ट पार्टिकल का है। फिर यही यहाँ मैम पे वो फर्स्ट पीछे पार्टिकल भेजता है, वो कंसेप्ट नहीं समझा। एक्सट्रीम पोजीशन से पीछे जाता है एनर्जी। इट्स परफॉर्मिंग एन ऑसिलेशन। जब आप स्प्रिंग को खींचते हो और आप उसको रिलीज करते हो तो वो स्प्रिंग मीन पोजीशन में जाके रुकती नहीं है, वो पीछे जाती है। हाँ थोड़े देर बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिसिटी है, थोड़े देर तो आगे पीछे मूव करेगा ना। It's अच्छा an मतलब elastic पार्टिकल्स medium. के इलास्टिसिटी के हाँ हाँ बराबर। पार्टिकल्स के इलास्टिक, दिस इज एन इलास्टिक मीडियम। मैंने पहले ही बोला कि वी हाँ आर मैम गोइंग टू यूज समझा द पूरा। प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ योर मीडियम। So in waves, instead of studying a single particle, what we are going to study? We are going to study the number of particles which are performing SHM at different time. And of course, ये क्यों perform कर रहे हैं SHM? Because the energy is being transferred in the forms of wave. Okay, mute yourself everyone please. So first property is clear with the characteristic of a progressive wave. That in a progressive wave, all the particles. हेलो मिस। Yes. मिस वो जो आपने वीडियो दिखाया था ना उसका एक चीज समझा नहीं। क्या? मिस वो फिर से बताओ ना, वो क्या, वो जब साथ में सबको छोड़ते हैं तो फिर सब हाँ? साथ में क्यों नहीं चलते हैं? होता क्या है जब आप सबको साथ में छोड़ते रेजोनेंस हो? होता है क्या? रेजोनेंस जैसा कंडीशन नहीं है। रेजोनेंस जैसा कंडीशन नहीं है वहां पे। फिर होता ऐसा है कि यू ऑब्जर्व द थिंग्स, ओके, देयर इज एन सीक्वेंस ऑफ टाइम जिसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को। तो जब आप उनको एक साथ छोड़ते हो, व्हेन यू टेक देम टू अ पर्टिकुलर हाइट, दे स्टार्ट परफॉर्मिंग द ऑसिलेशन, बट सिंस दे ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड विद अ रॉड, पर्टिकुलर रॉड, so they transfer their energy to the another pendulum, to the third pendulum, to the fourth pendulum. So इसकी वजह से जब ये बहुत सारा जो पार्ट है, they all are of same length, तो सबकी तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम ही होने वाली है। ओके, सबका लेंथ ऑलमोस्ट सेम रखा है हमने वीडियो में। सो इट इज ट्रांसफरिंग एन एनर्जी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है हर ना? पार्टिकल बोल सकते हो, since all of them are having a natural frequency, बोल सकते हो। तुम लोग को वो वीडियो वापस और क्या ऑब्जर्व हो रहा करना है? है क्या? वो वीडियो वापस ऑब्जर्व मिस करना है तुमको? उसका लिंक भेज दो ना मिस व्हाट्सएप पे। वो क्या है, इस पे थोड़ा इधर लैग लैग हो होता है मैम इसलिए रहा है। हाँ भेज दो मिस, ना तो ओके ठीक है, मैं भी व्हाट्सएप पे क्लियर। सेंड करती हूँ। ठीक है मैं व्हाट्सएप पे सेंड करती हूँ। मिस अभी कर रहे हो फिलहाल हो सिर्फ, क्या? हाँ नहीं अभी नहीं, आफ्टर लेक्चर। फिलहाल सिर्फ इतना समझो कि योर वेव इज एन कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर परफॉर्मिंग इन SHM। आप सिंगल पार्टिकल लेके उसका वेव ऑब्जर्व करो, या अलग अलग टाइम पे अगर सेम पार्टिकल का बिहेवियर है, मैंने समझो दूसरा वाला पार्टिकल भी यहीं से लिया, इसी पार्टिकल को अलग अलग टाइम पे ऑब्जर्व करो तो भी ऐसा कुछ शेप बनेगा, या बहुत सारे पार्टिकल्स को देखो अलग अलग टाइम पे तो भी आप इस पार्टिकल को इस टाइम पर देखो, जो ये बिहेवियर होगा वही ये पार्टिकल इस वक्त बिहेव कर रहा होगा सेम। आप इसको इस पॉइंट पे देखो, इसी पार्टिकल को आप इस पॉइंट पे देखो, या एक ऐसे पार्टिकल को ऑब्जर्व करो जो इसी पॉइंट पे बैठा है, so you'll find that their expression will be same, their property will be same. मिस बोलो। अगर फर्स्ट सेकंड को देगा तो सेकंड भी तो फर्स्ट को देगा ना एनर्जी बैक। हाँ, इसी वजह से तो पीछे ऑसिलेट होता है ना। ये जो मिस तो ऑसिलेशन फिर होता सबको है, साथ में ऑक्सीलेट होना चाहिए ना? सबको साथ में ही ऑसिलेट होता है, बट सबकी एनर्जी सेम नहीं होती ना। मिस मतलब सबको एक टाइम पे एक ही, मतलब ऐसे एक कोऑर्डिनेशन में, मतलब एक साथ ही होना चाहिए ना? अब ध्यान से समझो अमन, यू आर द फर्स्ट पार्टिकल एंड आपके सामने दूसरा एक पार्टिकल है। मैंने आपको एक एनर्जी दी, मैंने आपको पीछे की तरफ खींचा और छोड़ दिया, आप वाइब्रेट करना स्टार्ट हुए, आप ऑसिलेट करना स्टार्ट हुए। जैसे आप ऑसिलेट हुए, आप सामने वाले को टकराए, आपने अपनी एनर्जी सामने वाले को ट्रांसफर की इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब आप एक्सट्रीम पे हो, यू आर एट एक्सट्रीम, बट पहला वाला पार्टिकल तो अभी जस्ट शुरू हो रहा है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ?
मिस वो टकरा रहा है क्या? आप एक्सट्रीम पे हो। हाँ टकरा रहा है, टकरा करे तो सारे पास हाँ। आउट होते हैं। आप एक्सट्रीम पे हो तब दूसरा वाला पार्टिकल तो सिर्फ मीन पे ही रहेगा। सो देयर विल बी अ फेज डिफरेंस। अगर आप इस सारे पार्टिकल का एक ग्राफ, एक सर्कल ड्रॉ करो और जरा इस पार्टिकल्स को ध्यान से देखो। हाँ मिस। अभी ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये वाला पार्टिकल कहाँ है? यहाँ पे। ये वाला पार्टिकल कहाँ है? यहाँ पे। मतलब सबका जो ओमेगा टी है वो अलग अलग है। आप एक्सट्रीम पे हो, सामने वाला जस्ट स्टार्ट हो रहा है। आप एक्सट्रीम पे होने के बाद आप पीछे जाओगे, क्योंकि ऑसिलेशन में होता है ना इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप पीछे जाओगे तब वो आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, वो फिर थर्ड वाले को टकराएगा। जब वो एक्सट्रीम पे जाएगा तब थर्ड वाला जब स्टार्ट होगा तब आप पीछे जाओगे और वो जो थर्ड वाला है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। मतलब देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। सबका फेज इज डिफरेंट। सब जिस पॉइंट पे है सारे के सारे पार्टिकल्स, उनका फेज इज डिफरेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैम ये सर्कल आपने जैसा ड्रॉ करके बताया, ऐसा कब बताते हैं? हर वक्त जब भी एसएचएम परफॉर्म होता है। ये आपका एक्सप्लेनेशन कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये मैं आपको दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रेफरेंस सर्कल मेथड। मैं एक ही पार्टिकल को अलग, अब जरा ध्यान से देखो प्लीज प्लीज प्लीज, एवरीवन प्लीज। एक सर्कल लूं और एक ही पार्टिकल को अलग अलग टाइम पे ऑब्जर्व करूं, या ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उनको अलग अलग टाइम पर देखूं। वही फिर सेम। Can you see the chart? Can you see the part? This is a single particle जिसको मैं अलग अलग पॉइंट पे देख रही हूँ, और यहाँ पर there are different number of particles which are I'm observing at different time. Can you see the part? Compare कर पा रहे हो दोनों को? Means collectively it is performing in SHM. हेलो मिस। हाँ बोलो। हेलो मिस। बोलो मैम, लेकिन आपने बोला मैम एक पार्टिकल जब पूरा जा रहा है आप उसको ऑब्जर्व कर रही हो और कुछ बहुत सारे पार्टिकल्स को एक साथ ऑब्जर्व कर रही हो। हाँ मैम लेकिन समझ लो जो पार्टिकल आज अभी एक्सट्रीम पे आप ऑब्जर्व कर रही हो मैम, वो भी तो कभी इनिशियल पे था ना मैम। हाँ दोनों की वैल्यू तो सब सेम ही आएगी। तो हाँ, कभी वो मेरा ऑब्जर्वेशन कहाँ से शुरू है वो मैटर करता है ना। मैंने कभी बोला कि आपको, जब आपने वो पेंडुलम वाला एग्जांपल देखा, ऑब्जर्वेशन तो आपके ऊपर है, आप कब से स्टार्ट करते हो। ऑब्जर्वेशन इज ऑन यू। T0 से करो, T1 से करो, अपने ऊपर है। अपने ऊपर है। मैं नहीं देखना चाहती यहाँ से पार्टिकल को, मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ। मैं अपने पार्टिकल को एट 90 डिग्री देखूं या सीधा ऐसा पार्टिकल देखूं जो 90 डिग्री पे बैठा हुआ है। दोनों का बिहेवियर, दोनों का ओमेगा टी विल बी सेम। अगर पहले से कोई डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, मेरा पार्टिकल मैंने ऑब्जर्व किया, मेरा पार्टिकल अगर मेरा पहले से ही कोई डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो वो डिफरेंस मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगी कि मेरे को जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि पहले ऑलरेडी मेरे पार्टिकल के पास इतना था। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्षेत्रज्ञ मैम चैट बॉक्स पे पूछा। मैं चैट बॉक्स में नहीं देखती, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ बोलो। यही कि मिस मतलब एनर्जी आगे जाते जाते खत्म होगा। एनर्जी खत्म तो नहीं होएगा ना मैम? खत्म नहीं होता, एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफर्ड, डिसिपेट होगा। बट इधर रियल लाइफ इट डिसिपेट्स। ये कंडीशन में मैम, लेकिन वो पार्टिकल कुछ टाइम तक मतलब पास आउट करने के कुछ टाइम तक भी वाइब्रेट होता रहेगा ना? हाँ, क्योंकि देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। वही इलास्टिक मीडियम है इसीलिए। और वो बैक साइड में ऑसिलेशन कर पा रहा है, उसके पीछे मैंने वही बोला कि जब बहुत सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं तो पहला वाला पार्टिकल इसका एनर्जी देके रेस्ट पे नहीं आ जाता, ऐसा नहीं होता कि इसका वाइब्रेशन बंद हो जाएगा। हाँ, एक पर्टिकुलर टाइम तक ये ऑसिलेट करेगा बट इसका ऑसिलेशन धीरे 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 स्लो होता जाएगा क्योंकि अपने रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में ऑसिलेट कर रहा है। बट ये जो एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है मैम, ज्यादा दूर तक नहीं हो पाएगा ना? हेलो, एक मिनट, लेट मी क्लियर अप। हेलो एवरीवन, प्लीज स्टॉप योर डाउट्स नाउ, प्लीज स्टॉप योर डाउट्स नाउ एंड लेट मी कंप्लीट माय थिंग्स फर्स्ट। एवरीवन प्लीज स्टॉप योर डाउट्स नाउ। अब थोड़ा ड्रॉप डिफिकल्टीज को जरा साइड में रखो और जरा मेरी बातें सुनते जाओ मैं क्या क्या समझा रही थी। लेट्स गो टू द कंक्लूजन।
ऐसे बहुत सारा डिस्कस करेंगे तो बहुत ही डिस्कस करते रह जाएंगे। थोड़ा कंक्लूजन पे आओ, क्या सिखाने की, क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सी एक बात हमेशा याद रखो, रियल लाइफ में एनर्जी डिसिपेशन होता ही है। मैं सिर्फ आपको एक तरीका समझा रही हूँ जिससे आप ये समझो कि जब एक पार्टिकल, जब एक प्रोग्रेसिव वेव आगे की तरफ पास होता है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो कि सारे के सारे एसएचएम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर मैं जब सारे के सारों को ऑब्जर्व करती हूँ तो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, कि मैं एक पार्टिकल को 90 डिग्री पे देखूं या ऐसे पॉइंट पे जाके देखूं जहां पर वो पार्टिकल 90 डिग्री पे बैठा है, दोनों का बिहेवियर सेम होता है। मेरा ये समझाने का मीनिंग था। अब तुम बोल रहे हो कि मैम अगर इनिशियल कंडीशन कुछ एग्जिस्ट करती है तो क्या, तो इनिशियल कंडीशन अगर कुछ एग्जिस्ट करती है तो वहां हम जब इक्वेशन लिखेंगे, अगर मुझे दोनों 90 डिग्री वाले, मेरा सिंगल पार्टिकल एट 90 डिग्री और द पार्टिकल विच इज सिटिंग एट 90 डिग्री, अगर दोनों का बिहेवियर मुझे अलग अलग दिख रहा है, कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो मैं सीधा बोल दूंगी ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पार्टिकल के पास, इस पार्टिकल के पास कुछ एक्स्ट्रा था। ये मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते वक्त बोल दूंगी। समझ में आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर पहले से कोई फेज डिफरेंस है तो मैं ऑलरेडी वो इंट्रोड्यूस कर दूंगी while writing the equation. If I am getting the difference, it simply means because already there is an extra amount with this. Hope you are understanding. Hope you are understanding. Let's come to the conclusion. Extra amount अभी तुम ही लोग बोल रहे थे, मैम एक्स्ट्रा फेज होगा तो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ये होगा तो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वो होगा तो क्या करेंगे। मैं उसी एक्स्ट्रा की बात कर रही हूँ कि अगर तुम ये बोलते हो, Why you are confusing yourself? I don't understand. इतने बड़े साइंटिस्ट क्यों बन रहे हो? जो इमेजिन करने बोल रहे हो जरा उसको इमेजिन करो ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्यों ला रहे हो? बेसिक ही इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर रहे हो। बेसिक इमेजिनेशन करो ना, पहले स्टार्ट तो करो इमेजिन करना, पहले ही प्रॉब्लम्स लेकर आ जाते हो। स्टार्ट इमेजिनिंग, सोचने की कोशिश करो कि मैंने क्या बोला, मैंने क्या समझाया। मैंने इसलिए पहला एग्जाम्पल लिया कि मैं 1 से 50 के बच्चों को, मैं 1 से 50 इयर्स तक के एज डिफरेंस को देखना चाहती हूँ। एक पार्टिकल है जिसका एज मैं 1 से टाइम इज इक्वल्स टू 1 से टाइम इज इक्वल्स टू 50 तक देखना चाहती हूँ, कि उसका 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है कि इस पार्टिकल के पास कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने एक सिंपल इमेजिनेशन आपके दिमाग में डाला कि आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग कि उसके पास एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नहीं है, वो सब तो बात की कंडीशन है। पहले सुनो तो, समझो तो, इमेजिन तो करो। एक ही पार्टिकल है, उसको मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 तक देखूं, या फिर बहुत सारे पार्टिकल्स लाऊं और उनको अलग अलग पोजीशंस पे देखूं, अलग अलग एज पे देखूं। एक ही पर्सन का 1 से 50 तक, 1 से 50 इयर्स तक का एज देखूं, या अलग अलग बंदों को उसी एज के, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा लाओ और उनके ऑब्जर्वेशन को देखो। ऑन एन एवरेज जैसा ये बच्चा 1 साल पे बिहेव करेगा वैसा ही ये बच्चा 1 साल पे बिहेव करेगा ना। ऐसा तो नहीं है ये बच्चा जो है 1 साल पे चलने लगेगा, ये बच्चा कूदने लगेगा। दोनों बच्चे बच्चे ही होंगे ना, दे विल नॉट मूव एट 1 ईयर, उनका मूवमेंट कम होगा। जब बच्चा 50 साल का होगा, अगर ये बुढ़ा हो रहा है तो ये भी बुढ़ा होगा। ऐसा तो नहीं कि एक 50 साल पे बहुत यंग रह जाता है, 25 साल जैसा लगता है, और एक 50 साल, अंदर से इंटरनल पावर तो कम हो जाती है ना। मीन्स दोनों का बिहेवियर विल बी सेम। तो मैं एक ही बच्चे के लिए 1 से 50 साल तक वेट करूं, या इसी बच्चे का ऐसे एक 50 साल के इंसान का बिहेवियर देख लूं, ऑन एन एवरेज तो मुझे दोनों की प्रॉपर्टी सेम मिलेगी ना। अगर अब तुम बोलते हो नहीं मैम मेरा ये जो 50, अब तुम्हारा कंडीशन आता है मैम मेरा जो 50 साल वाला बच्चा है ना वो बहुत टैलेंटेड है, ही इज एन आइंस्टाइन, तो ये बात तो स्टार्टिंग से ही होगी ना, ही इज एन आइंस्टाइन। अगर ये केस है यहाँ पे तो आप ये केस इंट्रोड्यूस करोगे कि इनका और इसके दिमाग में इसलिए डिफरेंस आ रहा है क्योंकि इसका दिमाग बहुत अच्छा है, ये आप एक्सप्लेन कर दोगे। पर बाकी के बिहेवियर तो सेम ही होंगे ना। इंसान के फेसेस पे रिंकल्स होगा अगर वो कोई सर्जरी नहीं करवा रहा है, तो इंसान के बाल व्हाइट हो चुके होंगे अगर वो कलर नहीं लगा रहा है, तो ऑन एन एवरेज तो बिहेवियर सेम ही होगा ना दोनों का। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो मैं वही बोल रही हूँ कि जब हम ऑसिलेशन पढ़ रहे थे, हम सिंगल पार्टिकल का वेव देख रहे थे जो कि हमको ऐसा मिला। उसी पार्टिकल को हम इस टाइम पे दिस वाज एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ। इसी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड हम यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर अलग अलग टाइम पे देख रहे थे। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पार्टिकल को एट दिस टाइम देखने के बदले एक ऐसा पार्टिकल को देखो जो इस टाइम पे बैठा हुआ है आपके,
और मैंने स्टार्टिंग में कोई कंडीशन नहीं रखी, मैंने यही बोला दोनों के दोनों स्टार्टिंग में मीन पोजीशन से शुरू हो रहे हैं, मेरा वे भी मीन से शुरू हुआ है। सो मैं यहाँ पे 90 डिग्री वाले बच्चे को देखूं, इसको 90 डिग्री तक जाने तक का वेट करूं, या सीधा एक ऐसा पार्टिकल देखूं जो 90 डिग्री पे बैठा हुआ है, दोनों का बिहेवियर ऑन एन एवरेज मुझे क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। अब तुम ये सोच रहे हो मैम ये कैसे परफॉर्म हो रहा है, हाउ इट इज गेटिंग परफॉर्म। तो मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग। जब एक पार्टिकल सी, ये स्टेप बहुत ही फास्ट है, दिस प्रोसेस इज वेरी फास्ट, इट्स एन एडियाबेटिक प्रोसेस। ये आपने ऑलरेडी न्यूटन के लॉ में पढ़ा हुआ है कि ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है इट्स एन एडियाबेटिक प्रोसेस, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है ये, आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मैं इसको मैग्नीफाई करके आपको दिखा रही हूँ कि एक पार्टिकल सामने वाले पार्टिकल को एनर्जी देगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, वो जो पार्टिकल है वो पीछे आएगा। कुछ समझाने वाली हूँ इन सब चीजों से, इसलिए बार बार ऑब्जर्व करवा रही हूँ। अभी मैं सिंगल पार्टिकल में बात कर रही हूँ, कुछ आकर जाकर कुछ वर्ड्स यूज करने वाली हूँ, इसलिए ये मैग्नीफाइड फॉर्म में दिखा रही हूँ। एक पार्टिकल ऑसिलेट हुआ फटाफट, उसने आगे वाले को पास कर दी एनर्जी, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हुआ, ये पार्टिकल वापस से ऑसिलेट हुआ, मेन पोजीशन पे गया, पीछे आया, फिर ऑसिलेट हुआ, इसको ऑसिलेशन हो रहा है, तब तक इसने आगे वाले का एनर्जी पास कर दी। जितने में इसका एक ऑसिलेशन हो गया इस पार्टिकल का, उतने में पहला वाला पार्टिकल जस्ट स्टार्ट हो रहा है। सो देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बिटवीन। मैंने तो सिर्फ मैग्नीफाई किया है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वहां पे भी पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वहां पे भी पार्टिकल, देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्यों आपका साउंड वेव सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सॉलिड में चलता है? क्योंकि सॉलिड में वो इजिली अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर पाता है, गैस में ये चीज बहुत जल्दी नहीं होती है, गैस में यही चीज जल्दी नहीं होती। क्यों आपका सॉलिड में पार्टिकल का स्पीड सबसे ज्यादा होता है? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज होते हैं, फटाक से वो आगे ऑसिलेशन करते हुए फटाक से एनर्जी ट्रांसफर करता है, पीछे पीछे ऑसिलेट होता रहता है, तब तक आगे वाला आगे ट्रांसफर करता है, इन दिस वे द वेव कंटिन्यूज। और गैसेस में दूर रहते हैं मॉलिक्यूल्स, हाँ, गैसेस में दूर होते हैं तो वहां पे स्पीड सबसे कम हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स को कंटिन्यूएशन मिलता ही नहीं है उतना। यहाँ पे देयर इज एन कंटिन्यूएशन। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रोप के तो हर छोटे छोटे पॉइंट में पार्टिकल है ना, तो सोच सकते हो उसका ऑसिलेशन कितना फास्ट होगा। मींस एवरी पॉइंट इज परफॉर्मिंग इन एसएचएम हियर। जब आप रोप का ऑब्जर्वेशन करते हो, व्हेन यू मेक अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ रोप, आप एक एक पार्टिकल देखते हो क्या? आप कलेक्टिव देखते हो कि आपके रोप ने ऐसा कुछ परफॉर्म किया है? मतलब एक पार्टिकल उसी टाइम पे इस पॉइंट पे है, दूसरा पार्टिकल इस पॉइंट पे है, तीसरा पार्टिकल इस पॉइंट पे है, चौथा पार्टिकल इस पॉइंट पे है, पांचवा पार्टिकल इस पॉइंट पे है, और कलेक्टिवली आपको ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है। ये इतना फास्ट है कि आपको कंटिन्यूअस दिखता है। आप जब अपने फैन को देखते हो, फैन के सारे ब्लेड सेम कंटिन्यूअस है क्या? नहीं है कंटिन्यूअस। हर पार्टिकल, हर प्लेट अपना अपना परफॉर्मेंस कर रहा है, बट आपकी आईज भी तो डिटेक्टेबल होनी चाहिए। सो ये आपको जो कंटिन्यूएशन दिखता है, ये आपके आईज के ये कलेक्टिव रिजल्ट दिख रहा है। मैं आपको वही बोल रही हूँ कि कलेक्टिव रिजल्ट वही है जो आपका, या तो आप कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को एसएचएम परफॉर्म करके करवाओ, या एक सिंगल पार्टिकल पूरा एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो करवाओ। यू आर गेटिंग द कलेक्टिव रिजल्ट टू बी सेम। 50 लोगों को एक साथ देखो या एक ही बंदे को 50 साल देखो, हर पॉइंट पे उसका बिहेवियर वैसा ही मिलेगा। जो 1 साल का बच्चा अभी बिहेव कर रहा है, वहां पे भी वही 1 साल का बच्चा का बिहेवियर होगा। तो जो पार्टिकल यहाँ पर बैठा हुआ है उसका वही बिहेवियर होगा जब आप इस सिंगल पार्टिकल को यहाँ पे देखोगे। ये कंटिन्यूएशन मिल रहा है बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज वेरी फास्ट। योर आईज कैन नॉट डिटेक्ट ईच एंड एवरी पार्टिकल टू परफॉर्म द एसएचएम, but when you magnified it, you observe that every particle is performing an SHM. There is a vibration. Hope you are understanding what I'm trying to say. तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Means waves is a collection of particles which are performing SHM. Of course, there is a time lag in between ना, छोटा छोटा टाइम डिफरेंस तो होगा ही हर पार्टिकल के SHM परफॉर्मेंस में। वो छोटा छोटा टाइम डिफरेंस तो होना ही होना है, बट आप वो टाइम डिफरेंस क्यों ऑब्जर्व, आपको क्यों लगता है मैम सब एक साथ हो रहा है? क्योंकि आपकी आईज डिटेक्टेबल नहीं है उतने छोटे चेंज को, इसलिए आपको लगता है कि मैम सब एक साथ हो रहा है। बट पार्टिकल वाइज देखो तो सब एक साथ नहीं हो रहा है। एक दूसरे वाले को एनर्जी देगा, दूसरा वाला तीसरे वाले को एनर्जी देगा, देने वाला है ये एनर्जी, बट सिंस इट इज वेरी फास्ट, सो यू थिंक दैट इट इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हेलो मैम, बोलो।
मैम अभी सब सब समझा, अभी आप जो भी एक्सप्लेन किए सब समझा। सिर्फ एक डाउट है, आपने जो बोलो। बोला ये मीडियम में के पार्टिकल के समझो, ये पार्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है इसका एनर्जी एक्स्ट्रा होगी। ओके, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी डेवलप कैसा होता है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, वो एक्स्ट्रा एनर्जी हेल्प कैसे करता है? साउंड जो पार्टिकल्स पास होंगे उनको उनका फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा कि लाइक मतलब मेरे को ज्यादा सामने वाले को जोर का सुनाई देगा, या पास करने में थोड़ा हेल्प करेगा? अब जरा सुनो, पहली बात वो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप बोलते हो कि मिस इसके पास एक्स्ट्रा कुछ है तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ में एक एक्स्ट्रा एनर्जी टर्म ले लिया था। ओके, वो कुछ अपने से डेवलप नहीं हो रहा है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड जैसा कोई कंडीशन ही नहीं है। वो ठीक उसको है, तो एक्स्ट्रा पहला ही मिला क्वेश्चन कैसे? वायलेट हो गया। नहीं मिला, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही थी आपको कि अगर आप बोलते हो मिस इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है तो समझो कहीं ऐसा हो रहा है, इसलिए तो आप सुपर पोजिशन ऑफ वेव पढ़ने वाले हो। कहीं ऐसा हो रहा है, मैंने आपको लेक्चर लिया और बाजू से कहीं से स्पीकर स्टार्ट हो गया, तो आपका एक ही पार्टिकल के ऊपर दो एनर्जी स्ट्राइक होने वाली है। एक तो जो स्पीकर से साउंड एनर्जी आ रही है और एक जो मेरी है, तो वो एक एक्स्ट्रा काइंड ऑफ एनर्जी हो गई। तो मुझे वो चीज समझानी पड़ेगी कि अगर मैं अपनी साउंड एनर्जी का ग्राफ देखूं और मैं स्पीकर और साउंड एनर्जी वाला ग्राफ देखूं, मुझे दोनों में डिफरेंस आ रहा है। आप बोल रहे हो, आप ऑब्जर्व करोगे कि पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो सेम नहीं है, तो मुझे वो चीज समझानी पड़ेगी। ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि आप और सर है तो आपने पहला मुझे कुछ बोला, फिर वैसी फटाक से सर आके बोले, तो आपका जो था एनर्जी वो अभी भी पार्टिकल्स में है और सर का भी एनर्जी एडअप होके मतलब ये कंडीशन ऐसा कर सकते हैं ना। आपके जूम में कभी कभी जब हम बहुत फास्ट बोलते हैं आपको चीजें प्रॉपरली सुनाई नहीं देती। आप बोलते हो मिस सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत फास्ट जा रहा है। उसमें होता क्या है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, आपका कान डिटेक्ट नहीं कर पाता उस बैंडविड्थ को। आपके कान के डिटेक्ट करने का भी एक पर्टिकुलर रेंज है। प्लीज लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रॉपर्टीज नाउ। लेट्स कॉन्सेंट्रेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये चीज तो समझ गए। प्लीज प्लीज स्टॉप। पहला वाला ही पार्ट मैंने गलत बोल दिया ओम, तो सेकंड वाला थर्ड वाला वैलिड हुआ क्या क्वेश्चन? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये समझ गया कि प्रोग्रेसिव वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एसएचएम परफॉर्म करते हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स। जब आप कलेक्टिवली उन सारे पार्टिकल्स को देखते हो तो आपको ये चीज दिखती है कि इट इज परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन हियर। Second, hello miss, all the particles, hello please miss, please wait, let me complete now. All the particles of the medium have the same amplitude. हर पार्टिकल जो होता है वो सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है। मतलब पहला वाला जितने एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट किया था वही एनर्जी आगे ट्रांसफर हुई है, तो दूसरा वाला भी उतनी ही एनर्जी से ट्रांसफर करेगा। There is no loss in the energy. Real life में this is not possible. It's an ideal case. Okay. So we are going to discuss about the ideal case. That all the particles, all the progressive wave have same amplitude. All the particles will vibrate with the same amplitude, same frequency and same period. आपको पता है कि amplitude, period और frequency का मतलब क्या है? Third point. The phase of the particle changes from particle to particle. फेज जो है चेंज होता है फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, क्योंकि आपको पता है फेज किस पे डिपेंड करता है। व्हाट इज फेज? फेज इज थीटा, दिस इज ओमेगा टी प्लस फाई। हर पार्टिकल का फेज अलग अलग है, देखो ध्यान से यहाँ पे। ये पार्टिकल का फेज अलग होगा, ओमेगा टी प्लस फाई। ये जो पार्टिकल मीन पे बैठा हुआ है इसका टी इज 0, इसका टी इज 1, इसका टी इज 2। हर पार्टिकल का फेज विल बी डिफरेंट। So phase will change from particle to particle. Fourth, no particle remains at rest, permanently at rest. No particle remains permanently at rest. Means what? ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टिकल ने एनर्जी आगे वाले को ट्रांसफर कर दी, वेव आगे वाले को ट्रांसफर कर दिया, तो पहला वाला जो है वो पूरी तरीके से 0 पे आ जाए। वो रेस्ट पे कब होता है? सिर्फ जब ये एक सिंगल पार्टिकल जब एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसका रेस्ट आने का पोजीशन 2 ही होता है, दैट इज इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, जहां पे उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी, जो भी एनर्जी उसने रिस्टोर की है
अपने आप को एनर्जी रिस्टोर क्यों करता है कोई भी पार्टिकल? अपने आप को रिगेन करने के लिए। तो जो भी एनर्जी उसने रिस्टोर की है अंदर, उस एनर्जी को रिस्टोर की हुई एनर्जी को यूज करके वो अपनी जगह पे आने वाला है। सो ये 2 पॉइंट्स होता है पार्टिकल का, विच इज इट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जहाँ पे पार्टिकल रेस्ट पे आता है। अदरवाइज पार्टिकल कंटिन्यूसली थोड़ा 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 वाइब्रेट होता रहता है। नेक्स्ट, पार्टिकल की सबसे ज्यादा वेलोसिटी उसके मीन पोजीशन पे होती है, सिंस इट इज परफॉर्मिंग इन एसएचएम, यू नो, एंड पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम हैज द मैक्सिमम एनर्जी एट द मीन पोजीशन, maximum velocity at the mean position, not energy, maximum velocity at the mean position. 6 point, ये जब भी propagation होता है, during propagation of wave, theta is not constant, theta is a phase. How it can be constant? theta is omega t plus phi. t हर बार चेंज हो रहा है, हर पार्टिकल अलग अलग टाइम पे एनर्जी ले रहा है। पहला पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे एनर्जी लिया, दूसरा पार्टिकल t इक्वल्स टू 1, सो इट इज गोइंग टू चेंज। फेज इज नॉट कांस्टेंट, चेंज इज change in कांस्टेंट, phase. चेंज इन फेज। ओके, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते, पार्टिकल्स आर नॉट ट्रांसफर्ड। Particles are not transferred. 7th point, the velocity of the wave, wave की velocity, particle की velocity के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। The velocity of the wave depends on the medium. आपको पता है सॉलिड में सबसे फास्टेस्ट वेलोसिटी होती है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे से, फटाफट वेव ट्रांसफर होता है। वहीं पे लिक्विड और गैस की बात करो तो वहीं पर वो चीज कम हो जाती है। आपको ये एमसीक्यू में काफी बार आया हुआ है। फटाफट तुम्हारे पास बहुत सारे वर्कर्स हैं, सब पास में खड़े, आपने एक ब्लॉक लिया हुआ है जो एनर्जी है, उस ब्लॉक को आप फटाफट आगे वाले को पास करते जाओगे तो वो जल्दी आगे बढ़ जाएगा। वहीं पे आपने 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोगों को खड़ा किया है वही ब्लॉक ट्रांसफर करने के लिए, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, मींस उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। सो फास्टेस्ट speed of your wave is in solid medium. Next, Miss any wave. 8th one. Hello, ma'am. Miss I'm any talking wave. about mechanical wave. I'm talking about mechanical waves. Electromagnetic waves को तो मीडियम की जरूरत ही नहीं है। Hello, और ma'am. मीडियम होगा भी तो उनको कंटिन्यूस, 1 मिनट, कंटिन्यूस मीडियम की जरूरत है। आज पूछो। Ma'am, since from the morning there is no electricity over here and my phone is going to switch off, so can I leave? Yeah, sure. You can go. Yeah, thank you. Let's go. Yeah. 8th one. Progressive waves I've already discussed that it is of 2 types. One is transverse wave and another one is longitudinal one. बता चुकी हूँ डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। अब जरा ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल की एक प्रॉपर्टी ध्यान से सुनो। जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं, ये वेव सिर्फ सॉलिड से पास हो सकते हैं या फिर वाटर के सरफेस से। These waves can only propagate through solid or water surface. पानी के अंदर से या गैसेस में ये पास नहीं हो सकते। अब तुम बोलोगे मैम लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव बट इट कैन पास थ्रू वाटर, तो मैं तुमको आंसर दूंगी कि लाइट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव, इट इज नॉन मैकेनिकल वेव। वो मैकेनिकल वेव्स में आता नहीं, भले इट इज अ नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। We are talking about mechanical transverse waves. Okay, so it can only transfer through solid and water surface. Next, longitudinal wave सबसे पास हो सकते हैं। They can pass through any of the parts. They can pass through solid, liquid, gas. Hello, miss. Hello, miss.
बोलो हेलो मिस। पूछो पूछो। मिस मैं वो पूछ रहा था कि आपने बोला क्या मैकेनिकल वेव का वेलोसिटी साउंड और लिक्विड में ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू एयर। साउंड में सो लिक्विड मिस होता है। ओके बोलो। हाँ वो है। मिस सो अगर हम लोग ने पानी के अंदर ऐसा डीजे बजाया, सो वो हमें सुनाई क्यों नहीं देता मिस? सुनाई नहीं देता? नहीं देता। सुनाई बजा नहीं के देता? देखा है मिस, नहीं देता। हाँ मतलब नहीं देता। देता है तो बट फिर बहुत बहुत कम सुनाई देता है। क्योंकि सी एज कंपेयर टू योर, देखो जब तुम लिक्विड और एयर को कंपेयर करते हो फ्लूइड्स में, तो होता क्या है कि लिक्विड में, सिंस लिक्विड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोज है, बट कहीं ना कहीं वो टेंस्ड भी है। बट समवेयर अगर आप गैस को और लिक्विड को कंपेयर करोगे ना, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कैन वाइब्रेट एंड गैस के मॉलिक्यूल्स हल्के होते हैं। ओके बट स्टिल आप बोल रहे हो नहीं देता है, हाउ इज इट पॉसिबल? जब आपने कभी सॉलिड में ये चीज ऑब्जर्व की है? सॉलिड में आप कभी टेबल पे गाने को रखो, फोन जो भी आप चला रहे हो, और आपका ईयर जो है वो टेबल के ऊपर रखो, आपको वो साउंड बहुत ही क्लियरली सुनाई देगा। ऐसा मैं करती हूँ जब मेरे फोन का स्पीकर प्रॉपर्ली काम नहीं करता, आई कीप इट ऑन द टेबल एंड आई कीप माई ईयर्स ऑन द टेबल। व्हाट आई ऑब्जर्व कि मेरा मिस जो अगर साउंड है वो वो मुझे प्रॉपर्ली रीच हो रहा है। मिस वो तो वो पास में रहेगा तो ना, अगर हम लोग और नहीं नहीं, दो दूर में तीन रहेगा मीटर तो भी 3 मीटर दूर रहेगा फिर भी। देगा। इट इज हाँ सुनाई देता फास्टेस्ट, है। इट इज फास्टेस्ट इन सॉलिड, इट इज फास्टेस्ट। जितना पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोज होंगे ना उतना अच्छा। हाँ एनर्जी लॉस होगा, कीप इट इन माइंड, एनर्जी लॉस होगा, बट उसकी वेलोसिटी फास्ट होगी। एनर्जी लॉस होने में और एम्पलीट्यूड, आपकी वेलोसिटी में डिफरेंस है, हाँ हाँ पता है मिस, एम्पलीट्यूड कम हो डिफरेंस है। जाएगा, हाँ हाँ एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा क्योंकि उसको पार्टिकल्स को ओवरकम करके आगे आना है। हाँ मिस, तो फिर एम्पलीट्यूड लिक्विड कम में ऐसा होगा, क्यों नहीं होता? लिक्विड में क्यों नहीं होता? लिक्विड में भी होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा बच्चा। ऐसा नहीं है एम्पलीट्यूड, आपका साउंड कम सुनाई देगा, एम्पलीट्यूड कम होगा, बट उसका स्पीड बहुत फास्ट होगा। स्पीड फास्ट स्पीड होता है मिस, बट मिस वो सिंपल सा सुनाई नहीं फंडा है देता। अमन, स्पीड सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? उसका एनर्जी लॉस हो रहा है, पार्टिकल सामने है, वो पार्टिकल्स को ओवरकम करके वो वेव आगे बढ़ रहा है ना। एक पार्टिकल से दूसरा गया, दूसरे से तीसरा गया, तो हर बार एक सर्टेन अमाउंट का डैम्पिंग तो होता ही है ना, एक सर्टेन अमाउंट तो ओके ओके ओके, समझ प्रॉपर्टीज गया, वो हाँ लॉस समझ तो गया होगा ही मैं, ना, समझ गया, समझा मैं, इसीलिए समझा। आपका एम्पलीट्यूड कम होता है। दैट इज एन डैम्पिंग देयर। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे स्टॉप कर रही हूँ। तुम लोगों को अभी कुछ डाउट है तो पीछे तक मैं एम गिविंग यू 4 मिनट्स। मैंने जितनी भी चीजें समझाई है सर उनके बारे में सोचो और पूछो, कुछ भी पूछ सकते हो, जितना भी प्रॉब्लम है सब पूछ सकते हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम वेव को इमेजिन